Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start exercise 2.5 of class 9 mathematics. Here we will introduce new numbers called complex numbers. We have learned about real numbers. What are real numbers? Real numbers are combination of rational numbers and irrational numbers. Now we will introduce another system of numbers which is called complex numbers. What is complex numbers? Complex numbers are the combination of two parts, a plus b iota, and we show complex number by z. Here this part is real part and the part with which you can see this I is called iota. It is called imaginary part. So complex numbers are the combination of real plus imaginary part. Here this b is also a real number, but this iota makes this whole as a complex number. Why we are using complex numbers? The answer is, when real numbers fails, there are such type of equation the solution of which cannot be found in real number. For example, this is an equation, x square plus 1 is equal to 0. What is the solution of this equation? In other words, what I put here in place of x so that I get 0. If I put 1 square plus 1 square plus 1 square 1 and 1 2, and here you see that on right side there is 0, so 1 is not the solution of this equation. Now I put minus 1 square is also 1 plus 1 is 2, and 2 is not equal to 0. It means the solution of such type of equations are not present in real numbers. So Gauss is a scientist, mathematician, introduced new number system which we call complex numbers. We can find the solution of this equation in complex number. We will not go in detail of complex numbers. You will learn these all in advanced classes, but there are some points which you must know. First, what is the value of this iota? This iota is equal to under the root minus 1, and when we take the square of this equation, iota square, and here also square and square root cancel, it means minus 1. The value of iota is under the root minus 1 and iota square is minus 1. Now, as we know that how real numbers are added, subtracted, multiply and divide. The same problem is with these complex numbers. How we will add these two numbers, how we will subtract these two numbers, how we will multiply, divide. So we will learn in this exercise addition, subtraction, multiplication and division of complex number. Complex numbers are denoted by Z.
conjugate of complex number. The symbol of conjugate complex number is z bar, a plus b iota, and put bar on it. The conjugate of z is equal to a plus b iota is a minus b iota, and the bar is removed. So you can see that plus is changed into minus, and minus, if there is minus, then it will be changed into plus. Only the sign of this imaginary part with which you see the iota is changed. The real part remains same. Now we will do addition, subtraction, multiplication and division. अब हमारे पास क्वेश्चन 1 है कि एड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 8 प्लस 9 आयोटा एंड 5 प्लस 2 आयोटा. पहले आप इनको Z1 से शो कर लें. हम सपोज करते हैं कि ये Z1 है, यानी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये दूसरा Z2 है जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है. Z1 को Z2 के साथ ऐड करना है, यानी 8 प्लस 9 आयोटा को ऐड करना है 5 प्लस 2 आयोटा के साथ. याद रखें कि एडिशन में रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा. 8 प्लस 5 13 plus 9 iota plus 2 iota 11 iota. This is the addition of two complex number. The second part is 6 plus 3 iota. Suppose it is Z1, 6 plus 3 iota. The next complex number is 3 minus 5 iota. Add these two numbers Z1 plus Z2. 6 plus 3 iota plus 3 minus 5 iota. Real part is added with the real part, 6 plus 3, and the imaginary 3 iota is added with minus 5 iota. 6 plus 3 9, 3 iota minus 5 iota minus 2 iota, क्योंकि साइन इस 5 का लगेगा, 5 की वैल्यू ज़्यादा है 3 से. Now part 3, वन कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ 2 iota plus 3. इसको हम सपोज कर लेंगे ये Z1 है और इसकी तरतीब चेंज कर लेंगे, 3 को पहले और 2 आयोटा को बाद में, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर को फर्स्ट लिखते हैं और इमेजिनरी को सेकंड. दूसरा जो नंबर है Z2 वो है 8 माइनस 5, और मैंने आपसे कहा है कि अंडर द रूट -1 ये आयोटा के इक्वल है. अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. Z1 प्लस Z2, 3 प्लस 2 आयोटा एंड प्लस 8 minus 5 iota. Real part is added with real part and imaginary part is added with imaginary part. 3 plus 8 11, 2 iota minus 5 iota is minus 3 iota. Now we will solve fourth part. इसको हम Z1 कह लेंगे अंडर द रूट 3 प्लस अंडर द रूट 2 आयोटा, और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z2 का नाम देंगे 3 अंडर द रूट 3 माइनस 2 अंडर द रूट 2 आयोटा. अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. अंडर द रूट 3 प्लस अंडर द रूट 2 आयोटा, इसको ऐड करेंगे
z2 के साथ 3 अंडर द रूट 3 minus 2 under the root 2 iota. Real is combined with real part under the root 3 plus 3 under the root 3, and imaginary is combined with imaginary under the root 3 and 3 under the root 3, 4 under the root 3, 3 under the root 3 and 1 under the root 3. The total is 4 under the root 3. 1 under the root 2 minus 2 under the root 2. अंडर द रूट 2 को आप फिलहाल इग्नोर करें, यहाँ पे है 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, और अंडर द रूट 2 आयोटा आप इसके साथ लिखेंगे। अगर आप ये 1 ना भी लिखना चाहें तो ना लिखें, तो आ जाएगा 4 अंडर द रूट 3 माइनस अंडर द रूट 2 iota. In question 2, we learn about the subtraction of complex numbers. Subtract minus 2 plus 3 iota from 6 minus 3 iota. अब क्योंकि ये subtraction है, इसमें तरतीब से फ़र्क पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि 2 में से 3 माइनस करें या 3 में से 2 माइनस करें, ये अलग चीज़ है। तो पहले तो आप इसको नाम दे दें कि ये है z1 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। इस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप z2 कहें, 6 माइनस 3 आयोटा। फ्रॉम के बाद जो वैल्यू आएगी उसको पहले लिखेंगे, यानी z2 माइनस z1। z2 की वैल्यू है 6 माइनस 3 आयोटा, माइनस z1 है माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। 6 माइनस 3 आयोटा, ये माइनस और माइनस प्लस 2, माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा। अब रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, प्लस माइनस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा के साथ ऐड हो जाएगा। 6 प्लस 2 8, माइनस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस माइनस 6 आयोटा, 8 प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा। यहाँ पे अब हमने इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको हम कहेंगे z1 और इसको z2। z2 में से z1 को माइनस करना है, यानी 9 माइनस 8 आयोटा में से माइनस करना है 9 प्लस 4 आयोटा। 9 माइनस 8 आयोटा माइनस प्लस माइनस 9 माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा। रियल पार्ट इज कंबाइंड विद रियल प्लस इमेजिनरी इज कंबाइंड विद इमेजिनरी। यहाँ पे पहले प्लस लिख लें और फिर इन दोनों को साथ ऐड कर लें। 9 माइनस 9 0 प्लस माइनस 8 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 12 आयोटा। 0 अगर ना भी लिखें या लिखें एक ही बात है, प्लस माइनस माइनस 12 आयोटा, जिसको आप लिख सकते हो माइनस 12 आयोटा। ये 0 अगर ना लिखें तो कोई बात नहीं। पार्ट 3, 1 माइनस 3 आयोटा को सब्ट्रैक्ट करना है 8 माइनस आयोटा से, तो z1 इज़ 1 माइनस 3 आयोटा एंड z2 इज़ 8 माइनस आयोटा। z2 माइनस z1, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है, फ्रॉम के बाद जो वैल्यू आएगी आप उसको पहले लिखेंगे। z2 इज़ 8 माइनस आयोटा माइनस z1 इज़ 1 माइनस 3 आयोटा। 8 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस एंड माइनस प्लस 3 आयोटा। रियल और रियल को एक साथ लिख लें, 8 माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा को 3 आयोटा के साथ लिख लें।
8 माइनस 1 7, 3 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस होगा तो आ जाएगा प्लस 2 आयोटा। पार्ट 4 इज इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये हमारे पास है Z1 6 माइनस 7 आयोटा, ये है Z2 6 प्लस 7 आयोटा। Z2 में से Z1 को माइनस करेंगे, Z2 है 6 प्लस 7 आयोटा माइनस Z1 है 6 माइनस 7 आयोटा, 6 प्लस 7 आयोटा माइनस प्लस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा। रियल एंड रियल इज कंबाइंड, 6 minus 6 plus 7 iota is combined with 7 iota. Imaginary part is combined with imaginary part. 6 minus 6 0, 7 iota and 7 iota 14 iota. 0 को अगर आप ना भी लिखें तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है 14 आयोटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं 1 + 2 आयोटा एंड 3 - 8 आयोटा। हम सपोज कर लेते हैं कि 1 + 2 आयोटा ये Z1 है, यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, और Z2 है 3 - 8 आयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे Z1 × Z2, डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 8 आयोटा। बीच में अगर साइन ना हो, देखें ये 2 ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट खुद भी मल्टीप्लाई को शो करता है। वही मल्टीप्लिकेशन का तरीका है कि ये जो 1 है ये भी 3 - 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो +2 आयोटा है ये भी 3 - 8 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3, माइनस 1 को 8 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 आयोटा को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस माइनस -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 8 आयोटा के साथ। 3 1s are 3, माइनस 1 × 8 आयोटा 8 आयोटा, प्लस 2 3s are 6 और साथ ये आयोटा, माइनस 2 8s are 16 आयोटा एंड आयोटा आयोटा स्क्वायर। 3 -8 आयोटा प्लस 6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, तो इससे आएगा 2 आयोटा विद नेगेटिव साइन, क्योंकि 8 जो नेगेटिव है वो 6 से बड़ा है, तो साइन इसका लगेगा -2 आयोटा, माइनस 16। शुरू में हमने डिस्कस किया था कि ये जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 के इक्वल है। 3 - 2 आयोटा, माइनस एंड माइनस, प्लस 16 1s are 16। इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसका मतलब है कि ये भी रियल पार्ट है, और ये -2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। 3 + 16 19 -2 आयोटा, तो ये इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। सेकंड पार्ट, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि लेट Z1 = 2 आयोटा एंड Z2 = 4 - 7 आयोटा। Z1 और Z2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 - 7 आयोटा के साथ। 2 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 आयोटा को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 7 आयोटा के साथ। 4 2s are 8 और साथ ये आयोटा आ जाएगा, माइनस
2 7s are 14, iota and iota, iota square. 8 iota minus 14, iota square minus 1, 8 iota minus and minus plus 14. रियल पार्ट 14 है और इमेजिनरी पार्ट 8 आयोटा है. तरतीब बदल लें, पहले रियल पार्ट लिख लें और फिर इमेजिनरी पार्ट. ये इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है. पार्ट 3, ये सपोज कर लेंगे Z1 5 माइनस 3 आयोटा और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2 2 माइनस 4 आयोटा. इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है. 5 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 आयोटा. ये 5 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस 3 आयोटा भी 2 माइनस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा. 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 को 4 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, माइनस एंड माइनस प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 आयोटा के साथ. 5 2s are 10, माइनस 5 4s are 20 और साथ ये आयोटा, माइनस 3 2s are 6 और साथ ये आयोटा, प्लस 3 4s are 12 आयोटा एंड आयोटा, आयोटा स्क्वायर. 10 माइनस 20 आयोटा और 6 आयोटा ये ऐड हो गए क्योंकि माइनस माइनस प्लस और साइन इस बड़े वैल्यू की लगेगी, यानी माइनस 26 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है. 10 माइनस 26 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 मल्टीप्लाई 1 12. 10 माइनस 12 माइनस 26 आयोटा. 10 minus 12 is minus 2 minus 26 आयोटा. अब आते हैं पार्ट 4 की तरफ. ये सपोज ये Z1 है अंडर द रूट 2 प्लस आयोटा, दूसरे को नाम दे देंगे Z2 1 माइनस अंडर द रूट 2 आयोटा. Z1 और Z2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे अंडर द रूट 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस अंडर द रूट 2 आयोटा. ये अंडर द रूट 2 1 माइनस अंडर द रूट 2 आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस आयोटा 1 माइनस अंडर द रूट 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा. अंडर द रूट 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस अंडर द रूट 2 इस अंडर द रूट 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस माइनस माइनस प्लस आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा अंडर द रूट 2 आयोटा के साथ. अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई 1 यानी अंडर द रूट 2, क्योंकि 1 के साथ जो वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाए वो ही आता है. माइनस अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 2 यानी अंडर द रूट 2 स्क्वायर, 2 दफ़ा अंडर द रूट 2 है और साथ ये आयोटा, प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा माइनस आयोटा अंडर द रूट 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो आप कंसिडर करें कि यहाँ पे 1 है. 1 जब अंडर द रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही अंडर द रूट 2 आएगा. आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर अंडर द रूट 2 माइनस, हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होते हैं. यहाँ पे 2 रह जाएगा, साथ आयोटा प्लस आयोटा माइनस अंडर द रूट 2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 अंडर द रूट 2
माइनस 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 जाएगा तो 1 आयोटा, और साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 2 ग्रेटर वैल्यू है, या प्लस माइनस माइनस, माइनस एंड माइनस प्लस अंडर द रूट 2, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंडर द रूट 2 ही आएगा। अब ये इसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये दोनों रियल पार्ट है, अंडर द रूट 2 और अंडर द रूट 2, और साथ है माइनस 1 आयोटा को बस आप आयोटा भी लिख सकते हैं, अंडर द रूट 2 और अंडर द रूट 2, 2 अंडर द रूट 2, ये कितने अंडर द रूट है, ये 2 अंडर द रूट है, माइनस आयोटा। एडिशन में यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो ऐड होंगे, ये ऐड नहीं होंगे अंडर द रूट वाले वैल्यू, इसके साथ भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, 1 अंडर द रूट 2 एंड 1 अंडर द रूट 2 इज 2 अंडर द रूट। क्वेश्चन 4 में अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन को सॉल्व करते हैं। इसके डिवीजन जो हम रियल नंबर में डिवीजन करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले तो आपको ये कहा गया है कि डिवाइड द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय सेकंड, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, इसको डिवाइड करना है, तो आप इसको इस तरह लिख लेंगे Z1 डिवाइडेड बाय Z2। Z1 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा और Z2 है 5 माइनस आयोटा। अब हम इसको इस तरह डिवाइड नहीं कर सकते कि 2 प्लस आयोटा को इनसाइड रखें और 5 माइनस आयोटा से डिवाइड करें। आप क्या करेंगे, आप 5 माइनस आयोटा के कंजुगेट के साथ इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। किस तरीके से, यहाँ पे देखें 5 माइनस आयोटा है तो इसका कंजुगेट होगा 5 प्लस आयोटा, आयोटा के साथ जो साइन होता है सिर्फ वो चेंज होगा, रियल पार्ट के साथ साइन चेंज नहीं होगा। तो इसका जो कंजुगेट है यानी 5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा 5 माइनस आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस आयोटा और 5 प्लस आयोटा, डिवाइड भी करेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। असल में हमने 1 मल्टीप्लाई किया है क्योंकि इसको इस पर डिवाइड करें तो 1 आता है, देखने में तो आपको ये डिफरेंट लगेगा लेकिन असल में ये क्या है, इस तरीके से आप यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर लें और 1 अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ जाए, इस 2 प्लस आयोटा को 5 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना, यानी 2 को भी 5 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इस आयोटा को भी 5 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, हम फार्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी एंड a प्लस बी, जो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू 5 है, 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर। तो हमने a माइनस बी और a प्लस बी को फार्मूला की मदद से मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम डायरेक्ट करें तो 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 ज़ार 10 प्लस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 5, 5 आयोटा प्लस और प्लस प्लस आयोटा एंड आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में 5 स्क्वायर 25 माइनस आयोटा स्क्वायर, आप इसको ब्रैकेट से हटा के अब लिख लें 10 प्लस 2 आयोटा एंड प्लस 5 आयोटा 7 आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ ही ऐड होगा, यहाँ पे प्लस है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है, डिवाइडेड बाय 25
माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। 10 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस -1, 25 माइनस एंड माइनस +1। ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, तो 10 - 1 को एक साथ लिख लेंगे और 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 + 1 26। 10 - 1 9 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 26। अब ये 26 इस दोनों के साथ है, यानी 9/26 प्लस 7 आयोटा बाय 26। तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। हमने जब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया तो इससे एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आया जिसका रियल पार्ट है 9 डिवाइडेड बाय 26 प्लस इमेजिनरी पार्ट है 7 + 26 आयोटा। पार्ट 2, Z1 गिवन है और Z2 गिवन है, इसको डिवाइड करना है तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2। Z1 में इसकी तरतीब को हम चेंज कर देंगे, एक दूसरे के साथ इसको स्विच कर लेंगे क्योंकि हम रियल पार्ट पहले लिखते हैं और इमेजिनरी को बाद में, इसलिए इसको चेंज करेंगे और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। Z2 ये है 1 - आयोटा। अब फिर हमें इसको 1 - आयोटा का कंजुगेट क्या है 1 + आयोटा, इससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 + आयोटा। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा, 1 - आयोटा मल्टीप्लाई 1 + आयोटा और 1 + आयोटा से डिवाइड भी कर लेंगे। अब इस 4 को भी 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 आयोटा को भी 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आसान है, फार्मूला यूज़ कर सकते हैं a - b और a + b। ये a यानी 1 और b आयोटा, तो 1 - आयोटा और 1 + आयोटा ये फार्मूला की मदद से मल्टीप्लाई होगा, यानी a² - b²। तो a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है आयोटा स्क्वायर। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया इस फार्मूले से, a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b। a की वैल्यू हमारे पास है 1 + आयोटा, b आयोटा है और 1 - आयोटा। किसके इक्वल होगा a² यानी 1² - b² आयोटा स्क्वायर। तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 = 4 प्लस 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आयोटा, 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा, 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा और आयोटा तो 3 आयोटा स्क्वायर और प्लस एंड प्लस प्लस 3 आयोटा एंड आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1² 1 माइनस आयोटा स्क्वायर को आप इस तरीके से अब ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं। 4 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1। 4 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3 1 माइनस एंड माइनस प्लस 1। ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, तो आप इसको एक साथ लिख लें। प्लस
7 iota, 1 plus 1, 2. 4 minus 3, 1 plus 7 iota divided by 2. ये 2 1 के नीचे भी है और ये 2 7 आयोटा बाई 2 के नीचे भी है, तो ये Z1 और Z2 की डिवीजन है जिससे ये इसका रिजल्ट आता है। क्वेश्चन 5 में है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड रिड्यूस टू द फॉर्म A प्लस B आयोटा। इसमें जो ऑपरेशन दिया है उससे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है और इसमें देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ऐड करके, इसको सब्ट्रैक्ट करके, इसको मल्टीप्लाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। जिस तरह हम लोग करते हैं कि दो नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, उससे कोई तीसरा नंबर आता है। तो आप पहले इस ब्रैकेट को हटा दें, 4 माइनस 3 आयोटा प्लस ब्रैकेट हटाने से इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम रियल पार्ट को रियल के साथ लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। 4 प्लस 2 6, माइनस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा, माइनस एंड माइनस प्लस, और दोनों माइनस है तो साइन माइनस का आएगा। पार्ट सेकंड है 5 माइनस 2 आयोटा, ब्रैकेट हटा दें। यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट हटाने से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस इनसाइड देखें 4 जो है इनसाइड 4 प्लस है तो यहाँ पे माइनस, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा -4। ये माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस 7 आयोटा। रियल को रियल के साथ लिखें और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख लें। 5 माइनस 4 1, 7 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस तो 5 आयोटा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एंड प्लस माइनस, 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 5 आयोटा के साथ। 2 4 आर 8 और साथ ही आ जाएगा ये आयोटा, माइनस 2 5 आर 10 आयोटा एंड आयोटा, आयोटा स्क्वायर, 8 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 8 आयोटा माइनस एंड माइनस प्लस 10, 10 1 आर 10। रियल पार्ट को पहले लिख लें, इमेजिनरी को बाद में लिख लें। पार्ट 4 में अब हमने डिवीजन करना है। 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड, और इस तरह भी लिख सकते हैं 4 माइनस 5 आयोटा। अब हम इसको डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इसका जो कंजुगेट होगा यानी 4 प्लस 5 आयोटा। 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। 2 के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 5 आयोटा, और माइनस 3 आयोटा के साथ भी 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा। नीचे ये फार्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 5 आयोटा है, तो a माइनस बी एंड a प्लस बी इज a स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5 आयोटा होल स्क्वायर। अब हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 आर 8 प्लस 2 5 आर 10 और 7 आयोटा, माइनस एंड प्लस माइनस 3 4 आर 12 और साथ ये आयोटा, माइनस एंड प्लस माइनस 3 5 आर 15 एंड आयोटा आयोटा स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर 16 माइनस 5 स्क्वायर 25 और 7 आयोटा स्क्वायर। 8 प्लस 10 आयोटा माइनस 12 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 माइनस तो 2 और साइन 12 का लगेगा क्योंकि 12 10 से बड़ा है माइनस 15 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 8 माइनस 2 आयोटा माइनस एंड माइनस प्लस 15 डिवाइडेड बाय 16 माइनस एंड माइनस प्लस 25 16 प्लस 25 41 8 प्लस 15 23 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब ये 41 23 के नीचे भी है और ये 41 2 आयोटा के नीचे भी है। तो देखें ये A और B आपस में अलग अलग हो गए। तो देखें A और B जिस तरह उन्होंने कहा है कि A प्लस B आयोटा, तो ये असल में A है और ये माइनस 2 बाय 41 ये B है और साथ देखें आयोटा है। तो ये हमने इसको सेपरेट कर लिया। इन क्वेश्चन 6 फाइंड द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, हमने इसके कंजुगेट फाइंड करने। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा? अगर A प्लस B आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका नाम है Z, तो कंजुगेट होगा Z ऊपर क्या आ जाएगा बार, A प्लस B आयोटा इसके ऊपर आ जाएगा बार। रियल पार्ट इसी तरह रहेगा और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस B आयोटा। तो ये A माइनस B आयोटा इस A प्लस B आयोटा का कंजुगेट है, यानी Z कंजुगेट। अब इस पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा? -8, इसका साइन चेंज हो जाएगा यानी +3 आयोटा। इसका कंजुगेट क्या होगा? -4 और इसका साइन चेंज हो जाएगा यानी -9 आयोटा। 7 -6 आयोटा, ये इसका कंजुगेट है। इसका कंजुगेट क्या होगा? √5 और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये इसके कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं।